ایک بہترین منظم طریقے سے ناظم جلسہ عالی جناب بھائی حافظ و قاری نیّر بھارتی صاحب، میں کیوں نہیں شکریہ ادا کروں جناب قاری رضوان صاحب کا اور حافظ عبد المحیط صاحب کا اور قاری امتیاز صاحب کا اور ان کے تمام رفقا اور تمام کے تمام ککروا والوں کا کہ جنہوں نے بڑے محنت اور جستجو کے ساتھ اور بڑی جفاکش کے ساتھ یہ پروگرام کو الحمدللہ کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ NB میڈیا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو احمد نام رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پہ جو احمد نام رقم نہ ہوتا، صفائے ہستی ابھر نہ سکتے، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کان و مکان نہ ہوتی، وہ جو امام رسول نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں اور اسٹیج میں بیٹھے ہوئے باوقار علماء کرام حفاظ اعظام، خصوصاً حضرت مولانا مفتی جمشید عادل صاحب اور اس نظام کو چلانے والے ایک بہترین منظم طریقے سے ناظم جلسہ عالی جناب بھائی حافظ و قاری نیّر بھارتی صاحب، میں کیوں نہیں شکریہ ادا کروں جناب قاری رضوان صاحب کا اور حافظ عبد المحیط صاحب کا اور قاری امتیاز صاحب کا اور ان کے تمام رفقا اور تمام کے تمام ککروا والوں کا کہ جنہوں نے بڑے محنت اور جستجو کے ساتھ اور بڑی جفاکش کے ساتھ یہ پروگرام کو الحمدللہ کرنے جا رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے محنتوں کو قبول فرمائے اور جو احباب یہاں پہ آئے ہیں اللہ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ یا اللہ اسی بیٹھنے کی وجہ سے اور آنے کی وجہ سے اور اسی دل کی گہرائیوں کے سننے کی وجہ سے یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما کر اللہ ہم سب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہم سب کے مرحومین کو اللہ کرور جنت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں میرے بزرگوں، انسان جون سے بھی نیک اعمال کرے اور یہ اس
इसका इसाले सवाब अगर करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में भी आकर के ये नीयत करें कि मैं जा रहा हूँ दीन की बात सुनने के लिए, सुनाने के लिए और तौबा इस्तग़फ़ार करने के लिए। या अल्लाह हमारे इस इरादे के सदके तुफेल में हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इसके सदके तुफेल में उसके मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा देगा। इसलिए इंसान जौन से भी अमल करे और जितने भी नेक आमाल करे अपने मरहुमीन के लिए इसका ज़रूर भी ज़रूर ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये जलसा इस्लाह माशरे का भी है और निस्बत मस्जिद के छत की ढलाई का भी है। ये मस्जिद अल्लाह का घर है। आपको मालूम है कि जिस ज़मीन में मस्जिद बन जाती है वो ज़मीन क़यामत तक के लिए पाक और मुबर्रा साबित होती है। उस ज़मीन में आप मकान नहीं बना सकते, उस ज़मीन में आप जानवर के घर नहीं बना सकते, उस ज़मीन में पैखाना पेशाब का मकान आप नहीं बना सकते। क़यामत तक के लिए वो ज़मीन मस्जिद ही रहती है और ज़मीन से लेकर आसमान तक उसका एक बहुत बड़ा मकाम है। इसीलिए अल्लाह ताला पूरी दुनिया को पैदा फरमाया तो सबसे पहले रब्बे कायनात अपना दुनिया में घर भी बनाया, फिर वो घर मुनहदिम भी हो गया। हज़रत आदम अलैहि सलातो वस्सलाम फिर बनाए, फिर मुनहदिम हो गया। हज़रत नूह अलैहि सलातो वस्सलाम बनाए, फिर मुनहदिम हो गया तूफ़ान नूह में। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहि सलातो वस्सलाम उस खाना काबा को बनाए। मालूम हुआ कि इंसान जो ईमान वाला है और जिसके दिल के अंदर ईमान है वो अपना घर बनाने से पहले वो अल्लाह का घर बनाएगा। और आपको मालूम है कि जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना गए तो मदीना पहुंचते ही अभी रास्ते में ही थे, अपने मकाम पे नहीं पहुंचे थे तो फौरन मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद कुबा। और फिर जब मुतय्यना जगह में पहुंच गए, अपने ठिकाने में पहुंच गए तो सबसे पहले ज़मीन खरीद करके जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की बुनियाद डाली। पता ये चला कि मुसलमान जहां कहीं मुंतकिल हो और जहां कहीं अपना घर दूसरे जगह लेकर के जाए तो सबसे पहले मस्जिद की फिक्र किया करे। किसकी फिक्र किया करे? मस्जिद की फिक्र किया करे। ये ईमान वालों का काम है, ये मुसलमान का काम है। मगर हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया, हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया कि हम अपने मकानात को तो खूब बना लेते हैं, संवार लेते हैं। जब मकान से फारिग हो जाते हैं फिर दिल में बात आती है कि मस्जिद भी बनाना चाहिए। बाज़ जगहों में मस्जिद काफ़ी दिन तक नहीं बनती है। लोगों से पूछा जाता है कि आखिर इस मोहल्ले में मस्जिद क्यों नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि लोग मस्जिद के लिए ज़मीन नहीं देते हैं, इसीलिए मस्जिद नहीं बन रही है। हालांकि पूरी जगह मुसलमान की है और अल्लाह के घर के लिए, अल्लाह के घर बनाने के लिए, मस्जिद के लिए ज़मीन देने को तैयार नहीं। मस्जिद के लिए मस्जिद की ज़मीन वक्फ करने को तैयार नहीं। याद रखो मुसलमानों, रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाता है
इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाह। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि लोगों, जिसके दिल के अंदर ईमान होगा, जिसके दिल के अंदर रब्बे कायनात की मोहब्बत हुआ करेगी और अल्लाह के नबी की मोहब्बत होगी, सबसे पहले वो अल्लाह का घर बनाएगा। मदनी करीम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों याद रखो, जो आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाएगा, रब्बे कायनात उसी की बरकत से उसके घर को आबाद करेगा। मदनी करीम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो दुनिया के अंदर मस्जिद में ईंट लगाएगा, एक ईंट लगाने की वजह से रब्बे कायनात उस शख्स के लिए आखिरत में मोतियों का महल बना देगा। मदनी करीम जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, जो आदमी दुनिया के अंदर अल्लाह का घर बनाएगा और दुनिया में अल्लाह का घर बनाएगा, रब्बे कायनात उसके लिए आखिरत में मोतियों का महल बनाकर तैयार कर देगा। ओ लोगों, दुनिया के लिए हम मकान बनाते, दुकान बनाते हैं और ये पत्थर लगाते हैं, संगे मरमर लगाते हैं, मगर इस दुनिया में चंद मिनट ठहरेंगे, अरे वक्त आएगा, मौत आ जाएगी, मौत के फरिश्ते आकर लिहाजा मेरी रूह कब्ज करके लेके चले जाएंगे। अरे हमने कितने दिन रहना है? 2 साल रहेगा, 3 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, 60 साल रहेगा, वक्त आएगा, मौत आ जाएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। परवरदिगार कुरान करीम के अंदर ऐलान करता है, तमाम के तमाम लोगों के कान में ये आवाज पहुंचती है और आने दिन ये कहते रहते हैं कि आज फलाने की मौत हो गई, आज फलानी औरत की मौत हो गई, बच्चे की मौत हो गई, जवानों की मौत हो गई, बुढ़ापे की मौत हो गई, बूढ़ों की मौत हो गई, बूढ़ी की मौत हो गई, सबकी मौत आनी है, चाहे जवानी में हो, बच्चे में हो, बूढ़ों में हो, जिस शख्स के भी हो, मौत हर हालत में आकर रहेगी। और लोगों, चंद दिन के लिए और चंद घंटे के लिए और चंद महीने के लिए आलीशान मकान बनाते हो, कसम खुदा की तुम दुनिया में अपना घर न बना करके मस्जिद बना दो, कल कयामत के दिन लामहदूद जिंदगी में याकूत और मोती का महल मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में और एक अच्छी और शानदार वीडियोज़ आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।